اچھا، میں ایسے خوش ہوں جیسے نا کبھی کبھی بچپن میں، اب تو خوشی نہیں ہوتی، بچپن میں عید کی خوشی ہوتی تھی کہ کل عید ہے، تو میں بھی ایسے ہی خوش ہوں کہ کل میری بیٹیوں نے آنا ہے، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ تو میں نے آج پھر پہلے اپنے کچن میں سے چیزیں سمیٹی ہیں، بہت مٹی دھول ہو رہا ہے، چھت پہ ہے نا، سامنے دروازہ کھلتا ہے تو بہت زیادہ گندا ہو رہا ہے کچن، تو اس میں سامان بھی نہیں ہے، تو ہسبینڈ کو کہا ہے مجھے چینی پتی اور یہ چیزیں لا دیں، ویسے تو میں نیچے ہی سب کے ساتھ کھاتی ہوں، تو میں اب علیحدہ 2 دن کے لیے، مطلب 2 ہی دن ہے، ہفتہ اتوار اور پیر منگل کو ہم نے جانا ہے، تو 2 دن کے لیے اب میں ان سے تو نہیں کہتی نا کہ مجھے اب پیسے دو، تو میں چینی پتی بھی ان کے پیسوں کی لے آؤں۔ تو باقی وہ کل کسی نے کومنٹس کیا تھا، السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے انشاءاللہ تعالی ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش باش، ہنستا مسکراتا اپنے بچوں کے ساتھ رکھے۔ اچھا، میں کہہ رہی تھی کہ کل کسی نے کومنٹس کیا تھا کہ آپ کے ہسبینڈ کی ذمہ داری تو نہیں ہے، وہ پالتے ہیں، آتی ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، تو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ بے شک وہ کھلاتے پلاتے ہیں، اگر وہ نہ بھی آئیں تو ہسبینڈ کا میرے لیے تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، فرض بنتا ہے نا مجھے الگ سے کچن کا سامان لا کے دیں جو میں پکاؤں اور خود پکاؤں خود کھاؤں، لیکن میں خود نہیں اس لیے نہیں کرتی، ایک تو گیس اوپر کے پورشن میں نہیں آتی صحیح، آج کل شکر ہے گیس نہیں جا رہی، ویسے بالکل نہیں آتی، اور دوسرا ہسبینڈ ایک ہے تو پھر وہ اوپر کھاتے ہی نہیں ہیں، تو پھر میں بھی نیچے ہی کھا لیتی ہوں، تو اس لیے پھر میں نہیں مانگتی، تو لیکن اگر میں علیحدہ مانگوں گی تو مجھے لا کے تو دیں گے نا یہ ساری چیزیں، ضروری تو نہیں کہ میری بچیوں کے لیے وہ لا رہے ہیں یہ چیزیں، یہ موٹی موٹی چیزیں ہوگی، پتی، چینی، آئل، پیاز، ٹماٹر، یہ باقی انہوں نے بچیوں نے جو کھانا ہوتا ہے، پچھلی دفعہ بھی آئی ہیں چاٹ بنوائی ہے تو وہ خود لے کے آئی ہیں، آلو بھی خود لے کر آئی ہیں، چاٹ مسالہ، دہی وغیرہ خود ان کے پیسے میرے پاس پڑے ہوتے ہیں، وہ کہتی ہیں مما جو ضرورت ہو تو آپ ہمارے لیے لے آیا کرو، میں یہ نہیں، میرے ہسبینڈ نہیں دیتے، مجھے اچھا نہیں لگتا اپنے ہسبینڈ پر بوجھ ڈالنا، وہ یہ ابھی وہ کچھ بھی نہیں کرتے، ہاں یہ بنیادی چیزیں لا کے دیتے ہیں جو میں نے بتائی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ دنوں کے لیے نہ آیا کرے، بس 1 دن کے لیے آیا کرے، اگر ان پہ ڈال دوں گی تو وہ کہیں گے آیا ہی نہ کرے، تو اس لیے پھر میں اپنی بچیوں کے، یقین کریں پچھلی دفعہ آئی تھی تو آلو چاہیے تھے تو 120 روپے کلو آلو تھے، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گئی میکرونیز بنانے تھے تو وہ بھی میں ان کے پیسوں کے لے کر آئی، میرے ہسبینڈ نے خود سے نہیں کہا کہ تم یہ 120 نہ دو یا یہ وہ، میں نے کہا نہیں، میں آپ پر بوجھ نہیں ڈالوں گی، میں اس میں ہسبینڈ کی برائی نہیں کر رہی کہ بہت برے ہیں، میں یہی کہوں گی کہ ان کا فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے تو چینل بنایا کہ میرے پاس ہو تو میں اپنی بچیوں سے بھی 1 روپیہ نہ لوں اور میں خود ان کی کروں، جو کچھ مانگے وہ میں دوں، بس میرا اصول ہے کہ میرے بچے میرے ہیں، میں کسی پہ بوجھ نہیں بنانا چاہتی ان کو۔ خیر میں بہت خوش ہوں انشاءاللہ، بس یہ جلدی سے یا رات گزرے، کل میری بچیاں آئیں، ہم 2 دن خوب بیٹھیں گے، ہنسیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، انجوائے کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک اور سوال تھا کہ میں اپنی بچیوں کو وہاں سے ڈسٹرب نہ کروں، میری بچیاں ڈسٹرب ہو جائیں گی، وہ وہاں ہی رہیں۔ سسٹر آپ کی بات 100% ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہتی ہیں آپ، بس میں نے ایک بات آپ لوگوں کو بتانی ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر خدا نخواستہ زندگی میں میری بچیوں پہ کوئی مشکل ٹائم آتا ہے، ابھی تو ان کے باپ نے ان کو رکھا ہوا ہے، کبھی کوئی مشکل ٹائم آتا ہے کہ ان کو رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو آگے ان کی ماں اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے، اتنی کامیاب ہونی چاہیے کہ اپنی بچیوں کو خود پال سکے، خود سنبھال سکے، باقی آپ خود سمجھدار ہیں، یہ نہیں کہ خدا نخواستہ اگر باپ کو کچھ ہو جائے تو ماں بھی کسی کے آسرے پر، یہاں کسی کی ممٹی میں رہ رہی ہو، اور بچیوں کو کہاں چھوڑوں گی میں، کون چاچی مامی رکھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں رکھتا، اس لیے ماں کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ اپنی بچیوں کو خود پالے، تو اس لیے میں نے چینل بنایا ہے کہ میری بچیوں پہ کوئی مشکل ٹائم آتا ہے تو میں ان کو رکھ سکوں، سنبھال سکوں، نمبر 2 ان کی جب چھٹیاں ہوتی ہیں 3 مہینے کی، میرا دل کرتا ہے اس مہینہ 1.5 میرے پاس رکیں، عید بھی بیچ میں آتی ہے، چاند رات عید میرے ساتھ گزارے، میں یہ چاہتی ہوں میرے پاس اتنا ہو کہ میں ان کو 1 مہینہ 15 دن اپنے پاس رکھ سکوں، ان سے پیسے نہ مانگنے پڑے مجھے، اس لیے چینل بنایا ہے، یہ نہیں کہ میرے پاس پیسہ آئے گا تو میں ان کو وہاں سے
डिस्टर्ब करूँगी, पटना शुरू कर दूँगी, भाई तुम लोग बाप को छोड़ दो। ऐसी तालीम मैंने कभी नहीं उनको दी। और रही बात सुतीली माँ की, तो वो भी मैंने कभी नहीं, मैंने हमेशा यही कहा है कि आपकी आंटी जो मर्ज़ी करती रहे, आपने आगे से जवाब नहीं देना। अजान हो रही है, मैं झूठ नहीं बोल रही, ऐसे ही मैं कहती हूँ। हाँ, अगर वो आप लोगों को मारे या कुछ कहे तो आपने फिर भी कुछ नहीं कहना, बस बाबा को बताना है आपने, कुछ भी नहीं कहना, बदतमीज़ी नहीं करनी, कोई ऊंचा नहीं बोलना, बस बाबा को बता देना कि ऐसा है। तो और उनकी आंटी जो है वो दूसरी माँ, वो रहती ही ऊपर पोर्शन में है, वो नहीं संभालती। कल ये भी सवाल था कि बच्चियों को वो संभालती है, नहीं, मेरी बच्चियों को वो नहीं संभालती। हुआ कुछ यूँ था कि मेरा पोर्शन था वो, जिसमें अब वो रह रही हैं मेरी बेटियां। 3 मरले का घर था, है तो 10 मरले का, लेकिन एक तरफ मेरा पोर्शन बना था, एक तरफ मेरी जेठानी का ज़्यादा मरले पे था, दरमियान में छोटा सा सेन है। तो ऊपर बनाया था मेरे हस्बैंड ने, पहले वाले ने, अपनी दूसरी बीवी के लिए, लेकिन वहाँ सफ़ेदी वगैरह प्लस्तर वगैरह भी नहीं था। तो उसको सन 2020 की बड़ी ईद थी, तीसरे दिन मेरे हस्बैंड की बारात थी। मैंने ख़ुद सेज सजाई थी अपने इस फर्नीचर पे जो भी मेरे पास है, तो मैं ख़ुद उसको ब्याह के ले आई थी। चलो, अब हस्बैंड की ज़िद थी ना, तो वो उस कमरे में रहने लगी थी। तो उस 3 मरले के पोर्शन में अंदर ही वॉशरूम है, ठीक है, एक, अभी अजान हो रही है, मैं बताती हूँ। तो ना वहाँ 2 कमरे हैं, टीवी लाउंज है और कमरे के अंदर वॉशरूम है, जो मेरा बेडरूम था, मतलब जिसमें मेरा जहेज़ वाला बेड था। वैसे दूसरे कमरे में मैंने बेड ख़रीद के सिंगल बिछाए हुए थे, कारपेट डाली हुई थी, सजाया था सब कुछ। तो मेरी बच्चियाँ उस वॉशरूम की आदी थी, और जब मैं अपनी बच्चियाँ छोड़ कर आई थी तो तब मेरी बेटियों की एज थी, अब मेरी बेटी माशाल्लाह बड़ी वाली 15 साल की हुई है इस साल, तो 4 साल पीछे चले जाएं, 11 साल की बड़ी बेटी थी, और उससे 3 साल छोटी है छोटी बेटी, इतनी एज थी। अच्छा, मेरी बच्चियाँ छोटी बहुत थी, उनको आदत थी उसी वॉशरूम की, अंदर वाले की। तो मैं आ गई तो फिर वो ना, अच्छा, एक वॉशरूम हमारा बाहर बना था, टीवी लाउंज के बाहर गली का दरवाज़ा उसके साथ जोड़ के, तो मेरी बच्चियाँ वहाँ नहीं जाती थी, वहाँ बेसन भी नहीं लगा था, टाइलें वगैरह भी नहीं थी। बच्चों को आदत थी ना अंदर जाने की, ज़ाहिर आधी रात को भी उठना तो अंदर जाना। अब ये चीज़ वो बर्दाश्त नहीं करती थी कि वॉशरूम में क्यों आती हैं, गंदा करती हैं। एक दफ़ा मेरी बड़ी वाली बेटी ने गंदे कपड़े अंदर छोड़ दिए, नहाई है तो वो कपड़े नहीं उठा सकी मेरी बेटी, तो उस औरत ने वो कपड़े उठा के सेन में फेंके, चीख चीख के, गंदियाँ ये वो, इन्होंने कपड़े क्यों रखे हैं यार। मैं अपनी तारीफ़ नहीं करती, लेकिन अल्लाह पाक जानता है, मैंने कब्र में जाना है, लानत हो मुझ पर अगर मैं झूठ बोलूं। मैंने हस्बैंड की बच्चियों के साथ आज तक ऐसे नहीं किया, भले वो मेरे वॉशरूम में ऊपर आए, अभी नहा के बेटी छोटी निकली है, ऊपर धूप थी, तो मैंने वो उसके कपड़े अपनी मशीन में डाल दिए। चलो, जब मैं कपड़े धोऊंगी तो मैं उस बच्ची के कपड़े धो दूँगी, मैंने नहीं फेंके वो कपड़े उठा के। यार, ऐसे लोगों को खुदा का खौफ होता ही नहीं है कहीं से भी। तो उसने वो कपड़े उठा के फेंके, उसने वो तमाशा लगाया। उस टाइम उनका बाप उनके कपड़े स्कूल वाले इस्त्री कर रहा था, वो चीखती चीखती आई उनके बाप से, यूनिफॉर्म छीने, मुंह पे मारे मेरी बच्चियों के, कहती है गंदियों के कपड़े क्यों को तुमने हाथ क्यों लगाया है। अच्छा, जब खाना खाने बैठते तो कहती गंदे गिलास में, मेरी बेटी छोटी का नाम फातिमा है, छोटी बेटी बाप की गोदी में बैठ के खाना खाती होती थी, तो कहती है इसके गिलास में तुमने पानी क्यों पिया। उनको उसके गिलास में जड़ें अपने को पानी भी नहीं पीने देती, अपने ही बच्चों के जूठा पीने नहीं देती। फिर कहती है इनके साथ तुम रोटी क्यों खाते हो, उनके साथ तुम जुड़ के क्यों बैठे हो। ऐसे तमाशे लगाती। फिर मैंने अपनी बच्चियों को, फिर कहती बच्चियों को ऊपर शिफ्ट करो, मैं नीचे। मैंने बच्चियों को ये ज़रूर समझाया है, मैंने कहा तुम लोग जवान हो रही हो, ऊपर छोटी छोटी दीवारें हैं, सब के छत जुड़े हुए हैं। महल्लों का तो आप लोगों को पता है कैसे होते हैं, शहरों में और बात होती है, महल्ले जो होते हैं ना वहाँ और बात होती है, छोटी छोटी दीवारें हैं भी नहीं किसी की। तो ख़बरदार तुम दोनों बहनें ऊपर रही। मैंने कहा ऊपर कोई से कोई टप के आ जाए, कुछ हो जाए, मेरी बच्चियाँ सेफ़ तो नहीं है। मैंने कहा मेरा नीचे पोर्शन था, मेरे नाम है वो अभी भी, तो मैंने कहा ख़बरदार तुम लोग मानी इस बात पे। ये ज़रूर मैंने अपनी बेटियों को पट्टी पढ़ाई थी कि तुम लोगों ने नीचे रहना है, उस औरत के लिए वो घर बना है, ऊपर वो रहेगी। अब वो अपना पकाती है, अपना खाती है, मेरी बच्चों के साथ बैठ के नहीं खाती, बल्कि अपने जने के साथ भी नहीं बैठ के खाती, जना भी बच्चियों के साथ ही खाता है। तो नीचे सोती भी नहीं है, जने को कहती मैं अकेली सो जाऊंगी, तुम बच्चों के पास सोते हो, सो, मैं नहीं सोऊंगी नीचे। फिर जना उसका मेरी बच्चियों को छोड़ के ऊपर चला जाता है आधी रात को सोने के लिए।
तो कहने का मतलब है कि ठीक करता है, उसकी बीवी है। मैं अपनी बेटियों को ये समझाती हूँ कि आप बड़ी होगी, अंदर से कुंडी लगा लिया करो बेटा, वो उसकी बीवी है। कभी भी खबरदार तुम लोगों ने रोका ऊपर जाने से बाप को, या कोई ज़िद बखीली की, मकाफाते अमल है, तुम लोग उधर करोगे इधर मेरे साथ होगा, कोई मसरूरत नहीं पंगे लेने की किसी के साथ। तो इसलिए मेरी बेटियां फिर नहीं, अभी बातें बहुत लंबी है, वाकई वीडियो मुझे अब लंबी बनानी पड़ेगी। कल की वीडियो में मेरे बच्चे भी हो सकते हैं आए हों, मेरे लिए दुआ करना। मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस जल्दी से मेरी इनकम आ जाए, मैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा दूँ, अच्छे से अच्छा खिलाऊँ। और बाकी वाली बात जो है मैं आपको इंशाल्लाह कल बताऊँगी कि फिर मैंने आप लोगों की बातों पे असर लिया है कि आप लोग कहते हो ना कि बच्चियों को मैं पास ना रखूँ, उनकी शादियों का मसला, उनकी पढ़ाइयों का मसला। आप लोग अपनी जगह 100% ठीक कहते हो, लेकिन मैं एक माँ हूँ ना, मैं अपने दिल को समझाती रहती हूँ कि अल्लाह मुझे इतना दे। मेरा ख्वाब है कि एक घर में मैं और मेरी तीनों बेटियाँ रहें, बस कोई भी मर्द ना हो, मेरा हस्बैंड भी ये वाला ना हो, मैं उनको पालूँ, पढ़ाऊँ, लिखाऊँ सब। लेकिन आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते होगे, आप लोग मुझे बहुत अच्छे मशवरे देते रहते हो। इंशाल्लाह इस टॉपिक पे बात होगी, ज़िंदगी रही तो हम साथ ही रहेंगे। हम जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे से प्यार करते हैं, मेरी ज़िंदगी के इंशाल्लाह देखोगे आप लोग रूप रंग। तो अगर खुदा न खास्ता उन पे कोई मुसीबत आ पड़ी तो मैं दीवार की तरह खड़ी हो जाऊंगी। मुझे ये हस्बैंड भी छोड़ना पड़ा तो मैं इसको छोड़ दूंगी कि फ़र्ज़ करो खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे उनके बाप को कुछ होता है, क्योंकि आज उनका बाप ही उनका सहारा है। उनके बाप को कुछ होता है तो बच्चियाँ मेरी कहाँ जाएंगी, कौन उनको, जिस चाची ने उनको शादी पे जाके कुर्सी नहीं दी, वो दोनों खड़ी रही हैं साइड पे माँ मेटरों की तरह, जिनकी माएँ मर जाती हैं उन बच्चियों की तरह खड़ी रही हैं। तो उनको चाची कहती है जाओ ना ढूंढो ना, ढूंढ लो शादी हाल में कुर्सी अपने लिए, दोनों बहनें बैठ जाओ। वो चाचियाँ रखेंगी उनको? तो आगे से मैं बुलाऊं इधर रहने के लिए तो मेरा ये हस्बैंड तो कहेगा निकल जाओ तुम भी इनको लेकर, तुम्हें तो मैं नहीं रखूँगा। तो इसलिए उनकी माँ को स्ट्रॉन्ग करो आप सारे मिलकर कि खुदा न खास्ता उन पर कोई बुरा वक्त आता है या उनको कोई उधर, जैसे अक्सर मेरी बेटी रोते हुए मैसेज करती है मारा है मुझे, तो मैं उनको अपने पास ला के रख सकूं, इतनी मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊं। तो जो भी कोई न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करता जाए, शेयर भी कर दे ताकि मेरा भला हो जाए। और भी बहुत से सब्सक्राइबर हैं, ज़रूरत है उनको, सब्सक्राइबर कह रही हूँ, चैनल वाले हैं, उनको भी आप लोग सपोर्ट किया करें, उनके चैनलों पे भी जाया करें, ठीक है। तो हाँ, मैं क्या बता रही थी, मैं समझ रही थी वीडियो ख़त्म हो गई क्योंकि मुझे सही नज़र नहीं आ रहा। मेरी 14 मिनट की वीडियो है तो उस टाइम 11 मिनट की हुई थी, तो मैं समझ रही थी ख़त्म हो गई है वीडियो। तो हाँ, फिर वो अब उसकी माँ ऊपर ही पकाती है, ऊपर ही आटे गूंदती है, ऊपर ही आटा गूंदे तो कहती गंदियाँ आटा नहीं सही गूंदा। तो मैं अपनी बेटी को कहती हूँ अल्लाह पाक ने हाथ दिए हुए हैं ना मेरा बच्चा, खुद पकाओ खुद खाओ, किसी को कुछ भी नहीं कहना। फिर बड़ी बहन खुद रोटी पकाती है, खुद हांडी बना लेती है, खुद खा लेती। कभी उस औरत का मूड होता है तो देती भी है बना कर, लेकिन क्यों कोई बना के दे, खुद अल्लाह ने हाथ दिए हुए हैं ना। तो इंशाल्लाह मेरी बच्चियाँ अपना काम खुद करती हैं। तो जब यहाँ आती हैं तो तब मैं मजाक से कह दूँ ना कि अपनी बेटी को, मरियम नाम है मेरी बड़ी बेटी का, कहती हूँ बेटा बर्तन उठा दो नाश्ते वाले या कोई काम, तो कहती क्यों मम्मा हम उधर थक के आए हैं ना, अब आप काम करोगी हमारा। तो फिर मैं खुशी खुशी शौक़ से करती हूँ। तो आज फिर मैं कहूँगी आज मैं बहुत खुश हूँ। जैसे ही मुझे याद आता है ना ज़हन में मेरी बेटियाँ आ रही हैं तो मैं और खुश हो जाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप लोग दुआ करें, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मौके आए हम लोग मिला करें। बहुत महीने गुजर गए उनको देखे हुए, उनके साथ रहूँ, उनके साथ बैठूँ, और अल्लाह पाक इतना दे देना कि मैं उनको इतना दे दे कि उनकी सारी छुट्टियाँ जो है मेरे साथ गुजरें। चलो वहाँ पढ़ना उनकी मजबूरी है, बाप के साथ रहना है, रहेंगी, ब्याहेगा, वो सब कुछ करेगा, लेकिन कम से कम कोई शबरात, कोई ईद, कोई 14 अगस्त, कोई रमज़ान, इस तरह के मौके तो मेरे साथ गुजार लेना, या मैं वहाँ चली जाऊँ, हम माँ बेटियाँ एंजॉय तो कर सकें ना अपनी ज़िंदगी। बस इधर तरसते रहते हैं ऐसे दूर दूर से, लोगों के आसरों पे बैठे हुए हैं। खैर अल्लाह पाक है ना, इंशाल्लाह देगा, ज़रूर देगा। तो बाकी आप लोग कहते हो लंबी वीडियो बनाया करूं, तो मेरे से पास बातें ही नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं बातें इतनी। हाँ, करने को शुरू होती हूँ तो बहुत सारी करना शुरू कर देती हूँ, बातें नहीं आती तो नहीं करती। अच्छा, उस टाइम मैं छत से नीचे आई हूँ, ये सारा काम शाम पड़ा था, ये सब लोग छत पे ही धूप सेक रहे थे, तो आटा नहीं गूंदा हुआ था, मैंने अपने लिए क्या सबके लिए आटा गूंदा। और अल्लाह हाफिज़।